वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा और आपका चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में। वेलकम टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स। एडुकेट योरसेल्फ टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड गोल्स। As in the Bible of Derivative family, we believe that learning is earning. First of all, I would like to make an apology, a sincere apology, and say sorry to all of my followers and subscribers, as I could not put up videos or content for the last 4 weeks, nearly about a month. As I said earlier in the part 1 of the video on cash market, that I'm having renovation work at my home and is having issues with the internet. Moreover, when lightning strikes, it strikes really hard. I've been going through one of the bad phases of my life. It is nothing financial. Financial से कोई बात नहीं है, but related to some health issues in the family. But now, by God's sake, everything is smoothing up. So I am back again with this new video, the part 2 of the 2-part series on cash market and its difference with the futures market, which falls under the derivative section. Extremely sorry again for the prolonged delay for this video, but we will make up, and I'm pretty sure that as the show must go, always go on. So welcome back friends. We missed you a lot. In this part 1 of the video, we talked about cash market in details and how can we take delivery of stocks in the cash market. And we have talked about the short selling side in the cash market, which is limited to intraday only. We have talked how we can buy at a lower price to average down our buying cost and average up to get some more profitability when the stocks is on the rise. We learned in details about short selling in cash market, which is limited to intraday only, and about the two major malpractices in the stock market, namely pump and dump and brag and grab. This video will be full of information. Not skip and watch, or you can miss out on very valuable information which is not desired when you're learning and watching an educational video. आप स्किप करोगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है, और समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते. So let's dive in friends. Let's begin the video. So let's try to understand the difference between both these segments, the cash market, जिनको कि spot market भी कहा जाता है, and the futures market. ज़्यादा technical terms ना use करते हुए let's begin in simple form. हम एक stock उठाएंगे और try to figure out the first difference, that is the capital requirement in these segments. Let's say SBIN or State Bank of India. So we are talking about a stock called State Bank of India, which is currently trading at rupees 500. State Bank of India आज के दिन इसका भाव चल रहा है around rupees 500. तो अगर कैश मार्केट में ये स्टॉक खरीदना है तो मेरे पास कितना रुपए होना चाहिए? Let's try to understand. अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे एक शेयर खरीदना है तो मेरे पास होना चाहिए लगभग 500 रुपए से थोड़ा ज्यादा. अगर मुझे 100 शेयर्स खरीदना है तो मेरे पास होना चाहिए 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 50,000 रुपीस के करीब, और लगभग 50,000 रुपए. और अगर मुझे स्टॉक में 3,000 यानी कि 3,000 शेयर्स खरीदना है, वी शुड हैव मनी विच इज मोर देन 15 लाख रुपीस. और सो एवरीवन, आपको एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे
अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग और या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, शुरू करना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 500 रुपए है तो आप एक शेयर खरीद सकते हो, और आपके पास थोड़ा ज़्यादा कैपिटल है तो आप 100 शेयर्स खरीद सकते हो। और अगर आप कैश रिच हो और आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सीधा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। There is no limitations in buying the number of shares। आप अपने कैपिटल के अनुसार बाइंग कर सकते हैं शेयर्स। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कैश मार्केट में छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा आदमी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर इशू ये है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से आएगा कि आपके पास कितना शेयर्स है। अगर स्टॉक 5 रुपए बढ़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और आपके पास सिर्फ एक ही शेयर है, तो आपका मुनाफा 5 रुपए का होने वाला है। I hope this is clear to you, and we have discussed it earlier too in a video, and I'll provide the link of that video in the description box। कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इतना छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि अगर सही से काम किया जाए तो आप बहुत ज्यादा रिवॉर्ड या रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो बात घूम फिर के वही आती है कि अगर आपको कैश मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपकी क्वांटिटी हाई होनी चाहिए, मतलब आपके पास बड़ा कैपिटल होने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैश या स्पॉट मार्केट के बारे में, जहाँ पे आप कैश अच्छा खासे यानी कि कैपिटल बड़ा होने चाहिए तो मेक गुड रिटर्न्स एंड हाई प्रॉफिट्स एंड टेक डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि कैश मार्केट में हम क्या करते हैं कि हम जब कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो स्टॉक खरीदने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एक कंपनी जिसका शेयर मार्केट में फ्लोट करते हैं, हम उन स्टॉक को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर रखते हैं ताकि बाद में जब स्टॉक ऊपर जाए और आपको डिसेंट प्रॉफिट या रिटर्न्स मिले तो आप उसे बेच के मुनाफा कमा सकते हो। और यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या एवरेज डाउन कर सकते हो। अगर स्टॉक गिरे तो यू कैन एवरेज अप इवन इफ द स्टॉक मूव्स अ लिटिल बिट हायर। इसके बारे में हमने पहले भी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में चर्चा कर सकते हैं कि यू कैन बुक फुल प्रॉफिट और पार्शियल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर कन्विक्शन और आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे कि सोना खरीदा और उसको हमने बैंक के लॉकर में रख दिया, वैसे ही जब आप स्टॉक खरीदते हो तो डीमैट अकाउंट में वो स्टोर रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ डिलीवरी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कैश मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या है? तो उनके लिए हमारे गवर्नमेंट या हमारे एक्सचेंज ने या सभी ने एक दूसरा सेगमेंट बना है विच इज कॉल्ड एज द फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर्स बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट इन द कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट। फ्यूचर्स और कैश मार्केट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स में फायदा क्या होता है और लोग क्यों फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। So everyone, let's try to understand. Please pay attention. फ्यूचर्स में हमने जब ये ट्रेड लेनी होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक शेयर 100 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते आप। Why? Because in future there is a concept called lot size। क्योंकि हमने स्टेट बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम स्टेट बैंक का ही एग्जाम्पल लेंगे फ्यूचर्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज इन फ्यूचर्स इज 3000 शेयर्स व्हिच इज 1 लॉट। सो अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड करना है फ्यूचर्स सेक्शन में तो आपको मिनिमम एक लॉट यानी कि 3000 शेयर्स खरीदना है, और यू कैन बाय मल्टीपल्स ऑफ दैट इफ यू वांट टू बाय मोर देन 1 लॉट। So everyone, let's try to understand कि अगर यही 3000 शेयर्स का ट्रेड अगर मुझे फ्यूचर्स मार्केट में लेना है तो हमारे पास कितना कैपिटल होने का जरूरत है।
कैश मार्केट में अगर ये ट्रेड लेना है तो हमको 500 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 3000, दैट इज मोर देन 15 लाख रुपीज ब्रोकरेज और अदर चार्जेस को पकड़ के बोल रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर्स मार्केट यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग और लेवरेज। MBT और मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये ट्रेड फ्यूचर्स में लेना है तो 15 लाख से अधिक रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मार्जिन मनी है जितना हमारा एक्सचेंज या सेबी डिसाइड किया है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्जिन होते हैं 20 to 30% ऑन एन एवरेज और ये डेली चेंज होते रहते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट on that particular day the margin for State Bank of India is 20%। तो आपको अगर ये ट्रेड फ्यूचर्स मार्केट में लेना है तो आपको 15 लाख रुपए देने का जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर्स में मार्जिन चल रहा है 20%। So you can buy at a leverage of 80% by paying only 20% margin money. 20% of 50 lakh rupees is about 3 lakhs. So in the futures market, you can buy one lot of State Bank of India at only 3 lakhs instead of paying 15 lakh rupees in the cash market. Instead of paying 15 lakhs से थोड़ा ज़्यादा होगा और same amount of shares, that is 3000 shares of SBI, which is one lot. You can buy more lots in multiple of 3000 shares if you have more capital and you are cash rich. So this is the major difference or advantage between cash market and futures market कि आप leverage या margin based trading कर सकते हो और 20 से 30% डिस्काउंट प्राइस में शेयर्स खरीद सकते हो, but you have to buy it in lots. But the disadvantage is that in cash market you can book partial profits. That is, if you have bought 1000 shares, you can sell 100 shares, 200 shares or 500 shares according to your conviction in the cash market or spot market, और बाकी शेयर्स को आप डीमैट में होल्ड करके रख सकते हो। पर in the future markets, when you decide to sell or book profits, you have to sell the whole lot. That is, for example, in State Bank of India, which is a lot of 3000 shares, you have to buy in one lots and you have to sell in lots. You cannot partial sell or book partial profit in the futures market. आपने अगर ज्यादा लॉट लिया है, सोचिए आपके पास 3 या 4 लॉट है, तो आप 1 या 2 लॉट सेल कर सकते हो और बाकी लॉट को होल्ड करके रख सकते हो फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट। So hope you got the first major difference and the advantage and the disadvantage between the cash market and futures market कि कैश मार्केट में आपकी कैपिटल के अनुसार आप डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आपको डिस्काउंटेड लेवरेज में मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग मिलता है और यू कैन बाय 1 लॉट 2 लॉट या 3 लॉट। इन लॉट्स आपको बाय करना है और आप जो 15 लाख का SBI का शेयर्स 3000 शेयर्स का भाव है कैश मार्केट में, वही 3000 शेयर्स मतलब 1 लॉट फ्यूचर्स मार्केट में आप 20% डिस्काउंट 3 लाख रुपीस में ले सकते हो। लेकिन आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हो, आपको पूरा की पूरा लॉट अगर सेल करना है तो सेल करना होगा। अगर आपके पास ज्यादा लॉट्स है तो यू कैन होल्ड ऑन टू सम लॉट्स एंड लुक फॉर मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर्स और बेहतर तरह से कैसे चलते हैं और ये कैश मार्केट से क्यों बेहतर है और इसका डिसएडवांटेज या रिस्क बोलिए क्या होता है, अब उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। In the cash market, you can buy intraday swing, positional, mid और long term या आप scalping भी कर सकते हो। But in the future market, you can buy for intraday swing, positional, mid term. But in future market, there is a concept called expiry. हर स्टॉक जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होता है और दोनों इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, उसका एक प्री डिटरमाइंड एक्सपायरी डेट होता है जिसको बोला जाता है मंथली एक्सपायरी, और वो होता है द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। जैसे कि इन द मंथ ऑफ मे द एक्सपायरी डेट ऑफ ऑल द स्टॉक्स trading in futures and the index like Nifty and Bank Nifty
will have an expiry day on the last Thursday of the month of May 2022, which happens to be 26th of May, the last Thursday of the month of May. मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपने फ्यूचर्स मार्केट में एक्सपायरी का खरीदा है, it will expire on the last Thursday, that is on the 26th of May. अगर आपने जून एक्सपायरी का खरीदा है तो that will also expire on the last Thursday of the June month, that is on 30th of June, the last day of the June month, which happens to be the last day of the June month coincidentally. आप जो एक्सपायरी चल रहा है उसके लेके 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो या बेच सकते हो. That means in the month of May, as of now, after the end of April month expiry, you can buy contracts of May expiry, June expiry and July expiry, which happens to be the last Thursday of the month of May, June and July respectively. अब सवाल ये उठता है कि कैश मार्केट में तो कोई एक्सपायरी नहीं होता है. You can hold it for as much long time as you want. But in futures, there's a monthly expiry in stocks and indices like Nifty and Bank Nifty. So how to trade in positional and mid-term basis? So there is a concept called rollover or carry forward. Suppose you have bought 2 lots of SBIN in the May. Suppose you have bought 2 lots of State Bank of India in the May expiry, and I said earlier it will expire on the last Thursday of the month of May, that is on 26th of May. You can book your profits anytime within the expiry, but if you feel like that the stocks आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसे और देर तक रखना चाहते हो तो you can definitely roll over. If you are on the buy side of the trade, you have to sell the SPI lots of May expiry and buy back the lots of June expiry, जिसका validity अब हो जाता है last Thursday of the June month, that is 30th of June. At expiry, you can roll both of your lots bought, or you can book in one lot and roll over the other lot to the next month. This is how you can do पोजिशनल और मिड टर्म ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स मार्केट. जो बहुत के मन में एक सवाल रहता है कि एक्सपायरी होता है तो हम पोजिशनल या मिड टर्म ट्रेडिंग फ्यूचर्स पे कैसे करें. तो रोल ओवर या कैरी फॉरवर्ड की कॉन्सेप्ट से आप फ्यूचर्स में भी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो. फ्यूचर्स मार्केट के और एक एडवांटेज होता है कि इन कैश और स्पॉट मार्केट short selling is limited to intraday only, but in futures there is no such limitations. If you short or sell a stock in the cash or spot market, you have to buy it back and square up your position before the market closing at 3:30 p.m. Or you have to pay penalty, or it may go to the auction market the next day, and it may be that you have to buy it higher and face a larger loss. लेकिन in futures market there is no such limitation in short selling. You short 1 lot, 2 lot or more according to margin capacity and hold it for any amount of time till the expiry of the month. And if you feel that is going to fall more, you can certainly roll over or carry forward to the next month expiry. ये एक major advantage है futures market की कि short selling has no limitation on the basis of time frame. जैसे कि इन क्रैश और स्पॉट मार्केट में इट वाज लिमिटेड टू इंट्राडे ओनली. जो सुबह स्टॉक्स को सेल करते थे उसे दिन की अंत में 3:30 बजे से पहले ही आपको बाई बैक करके स्क्वायर अप करना होता था. लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में ऐसे शॉर्ट सेलिंग का कोई लिमिटेशंस नहीं है. यू कैन sell anytime within the expiry, you can buy it back anytime within the expiry, or you can carry it over or roll over to the next month expiry. So there is more opportunity to buy to make profits in the future markets. तो इन द फ्यूचर्स मार्केट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप बाई करके भी मुनाफा कमा सकते हो, और अगर मार्केट गिर रहा है या स्टॉक गिर रहा है तो यू कैन शॉर्ट सेल एंड बाई बैक एट अ लोअर प्राइस एंड मेक प्रॉफिट. फ्यूचर्स मार्केट में आप दोनों तरफ पैसे बना सकते हो.
अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप बाइंग करके पैसे बना सकते हो, और अगर मार्केट गिर रहा है तो भी आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे या कैश बना सकते हो। तो कैश मार्केट में ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग में एक टाइम होराइजन होता है जो कि फ्यूचर्स मार्केट में नहीं होता है। सो फ्यूचर्स के फायदे ये है कि आप लेवरेज या मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, ये है पहली बात। दूसरी बात, यू कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ shares as in cash market at a much lower price by paying only 20 to 30% of leverage money. You can short sell if the stock is falling and you have no binding like cash market. You can hold it for as long time as you can, and even you can roll over or carry forward to the next month. तो फ्यूचर्स में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप पैसा बना सकते हो, और अगर मार्केट या स्टॉक नीचे जा रहा है तो भी आप पैसा बना सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि खरीदा हुआ स्टॉक आप टुकड़ों में बेच नहीं सकते हो। आप जैसे कि कैश मार्केट में यू कैन सेल 15, 20, 30, 40 स्टॉक्स, ऐसे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में आप ऐसे नहीं कर सकते हो। हर एक स्टॉक का अलग लॉट साइज होता है। जैसे हमने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज होता है 3000 शेयर्स, वैसे ही हर एक स्टॉक का अलग लॉट साइज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस विच इज ट्रेडिंग एट द मोमेंट एट 2650 has a lot size of 250 shares, HDFC Bank with a lot size of 550, HDFC Limited has a lot size of 200, Axis Bank, ICICI Bank and Kotak Bank has a lot size of 2500 shares, 1375 shares and 400 shares respectively. हमने रिलायंस, HDFC, कोटक, ICICI का इसीलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये इंडेक्स हैवी वेट्स है, और ये इंडेक्स यानी कि निफ्टी का टॉप 7 स्टॉक्स में से है। अब so in futures market you can buy in lots and multiples of it, and you can sell it lots and multiples of that too. इंडेक्स लाइक निफ्टी जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, उसका लॉट साइज है 50 एंड बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25। आप बढ़ते हुए और गिरते हुए दोनों तरफ ही मुनाफा कमा सकते हो इफ यू हैव गॉट द राइट ट्रेंड करेक्टली। अब ये ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। उधर आपको टेक्निकल चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ओआई क्या बिल्डअप हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और बहुत सारे पैरामीटर्स है, एंड वी विल बी कवरिंग दैट इन आवर फ्यूचर वीडियोस इन डिटेल्स, दैट हाउ यू कैन मेक दैट व्हाट इज द ट्रेंड इन द स्टॉक और इन द इंडेक्स, और आपको शॉर्ट जाना चाहिए या लॉन्ग जाना चाहिए, उसके बारे में हम हाउ टू ट्रेड जो सीरीज होने वाले हैं उसमें विस्तारित में या डिटेल्स में चर्चा करेंगे। As we said that learning is earning, but it will be step by step. We cannot jump directly, as learning is a gradual process and it should be done in steps. तो कहाँ से हम lot size पे you can find out the lot size and margin requirement for each stock trading in futures in the NSE website in the derivative section. The website is www.nseindia.com. The margin for futures varies from day to day. Mainly it remains between 20 to 30% of the total valuation. You can have a check in the NSE website. We have given the link of the website in the description box below. And और महत्वपूर्ण और एक बात फ्यूचर्स मार्केट में बोलना चाहता हूँ कि मार्केट एक्चुअल शेयर्स, फ्यूचर्स मार्केट में एक्चुअली शेयर्स का कोई लेन देन नहीं होता है। जब आप कैश मार्केट में कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाता है या क्रेडिटेड होता है, और जब सेल करते हो तो वो डीमैट अकाउंट से निकल जाता है या डेबिटेड हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर्स दोस्तों सिर्फ वैल्यू डिडक्ट किया जाता है ऐसे उस पर्टिकुलर स्टॉक से। यहाँ पे कोई एक्चुअल शेयर्स की कोई लेन देन नहीं हो रहा होता है। एक बायर और एक सेलर के बीच एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए होता है ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस टिल अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ही एक्सपायरी डेट बोला जाता है।
So we have learned how to take advantage of leverage कि leverage के फायदा futures market में कैसे उठा सकते हो और what is lot size, what is expiry, how is the rollover or carry forward to maximize your profit, and when does the monthly expiry actually occurs. फ्यूचर्स मार्केट में लॉट साइज, एक्सपायरी, रोल ओवर या कैरी फॉरवर्ड इनके बारे में हमने पहले भी हमारे चैनल में वीडियो बनाया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वी आर शेयरिंग द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड वॉच इट. यू विल हैव योर concepts more clearer. Now we will talk about the very two important aspects of futures market. One is about MTM and the other about premium and discount in future prices of the underlying asset price. Now let's understand about premium and discount in futures. Premium is also known as contango. प्रीमियम को contango भी कहा जाता है और डिस्काउंट को बोला जाता है बैकवर्डेशन. कभी कभी आपने सुना होगा टीवी वाले बोल रहे हैं कि हमारे फ्यूचर्स प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है. इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब कि ये प्रीमियम या कंटैंगो, एंड व्हाट इज डिस्काउंट और आल्सो नोन एज बैकवर्डेशन. सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल. सपोज मान लो एक कस्टमर है और एक ज्वेलर है और हमारे आज की भाव गोल्ड का चल रहा है 50,000 रुपए पर 10 ग्राम्स, 50,000 रुपीज 10 ग्राम्स का भाव. कस्टमर के यहाँ पे शादी है एक साल बाद. ये कस्टमर ज्वेलर के पास गया और बोला कि हमारे यहाँ एक साल बाद शादी है और कस्टमर को लग रहा है कि एक साल बाद सोने का दाम कहीं बढ़ ना जाए, उसे डर लग रहा है. तो ये ज्वेलर के पास गया और बोला कि हमारे यहाँ एक साल बाद शादी है और हमको 10 लाख रुपए का सोना या गहना लेना है, लेकिन आज की जो रेट चल रहा है मतलब 50,000 रुपए 10 ग्राम का भाव, उसी रेट पे चाहिए, लेकिन हमको सोना एक साल बाद लेना है. तो इस कंडीशन में ज्वेलर क्या करेगा? या तो उसको हाँ बोल देगा और बोलेगा कि आप ऐसे कर लो. तो एक साल की बात है, तो एक साल बाद सोने का रेट क्या होगा ना कस्टमर को पता है ना ज्वेलर को पता है. तो दोनों को डर है कहीं बढ़ ना जाए सोने का भाव. एक साल तक ज्वेलर का वो कस्टमर की जो ज्वेलरी है उसको संभाल के भी रखना होगा पड़ेगा. तो जब कस्टमर एक साल बाद सोना लेने आएगा तो उसको उसका सोना देना भी होगा. तो जो ज्वेलर है वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि आप अपनी 10 लाख की ज्वेलरी आज ही ले लो और आज ही पैसा दे दो, 10 लाख रुपए मेरे, और आप अपने ज्वेलर रख लेना और एक साल बाद जब आपकी शादी आए तो उसे यूज कर लेना. तो कस्टमर बोलता है नहीं, मुझे एक साल बाद ही लेना है और आज की भाव में ही लेना है. तो ये क्या करता है ज्वेलर, जो क्या करता है, एक तो कस्टमर ने उसके 10 लाख रुपए ब्लॉक कर दिया, नहीं दिया, तो ये 10 लाख ज्वेलर के पास गए और सोने के रूप में उसको रोके रह गए. कस्टमर ने ज्वेलरी बनाने की ऑर्डर भी दे दी और ज्वेलर को ये 10 लाख का सोना उनके पास रखना है एक साल तक. तो इसके ब्याज के रुपए भी मारी गई, क्योंकि ये अगर ये 10 लाख बैंक में या कहीं भी रख दे तो उसका एक ब्याज या इंटरेस्ट मिलता वो सोने के रूप में रहेगा. एक तो ये सोने का ब्याज और ऊपर से उसकी रखवाली, उसकी कहीं चोरी ना हो जाए इसका डर भी रहता है. इसको बोलता है कॉस्ट ऑफ कैरी, मतलब रखने की कॉस्ट. और वो हो गई कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि अगर हमने ये 10 लाख रुपए कहीं और लगाते तो हमें कितना ब्याज या इंटरेस्ट मिल सकता था. एक तो वो कॉस्ट विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा उसको संभालने की जिम्मेदारी और जगह चाहिए, उसकी कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ कैरी है. तो ज्वेलर की दोनों कॉस्ट को ऐड करके और आज के रेट के हिसाब से लगाना होता है.
तो अगर कस्टमर 3 महीने बाद पेमेंट करता है तो ये 6 महीने या 6 महीने बाद पेमेंट करता है या 1 साल बाद तो उनसे ये लेना है, तो ये दोनों प्राइस जो कि कॉस्ट ऑफ कैरी है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको उस ज्वेलर को अपनी 50,000 पर 10 ग्राम की गोल्ड प्राइस में लगाना होता है। तो हमारा जो फ्यूचर प्राइस हो जाता है वो होता है स्पॉट प्राइस प्लस द कॉस्ट ऑफ कैरी एंड द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हम इसको बोलते हैं प्रीमियम या कॉन्टेंट। ये फ्यूचर के प्राइस हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। फ्यूचर के प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है 95% टाइम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दोनों इंक्लूडेड होता है। और डिस्काउंट में फ्यूचर्स के प्राइस इज लेस देन द स्पॉट प्राइस और कैश प्राइस, जो कि बहुत रेयर होता है। एक एग्जाम्पल तौर पे मैं बोलता हूँ कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, जब कोविड आया था 2019-20 के बिगिनिंग में, तो उस वक्त क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल की फ्यूचर्स बहुत नेगेटिव में चला गया था। जिसके पास ऑयल के फ्यूचर्स थे उनको ऑयल डिलीवरी की बात आ गई थी, कारण उसके पास ऑयल रखने की जगह नहीं थी। तो वो क्या करते थे कि आप क्रूड ऑयल रख लो और हम उसके पैसा देंगे, इसके लिए क्रूड ऑयल डिस्काउंट में चले गए थे। दिस इज अ वेरी रेयर केस। In most of the cases, the future prices are higher than the cash or the spot prices, और नेगेटिव में मतलब डिस्काउंट में बहुत कम समय तक देखा जाता है। In the cash or spot market, the price of the futures market are trading in premium when the cash market price is higher than the future price. It is said that the futures is trading in discount. This is seen in all stocks trading in future sections and mainly in Nifty and Bank Nifty futures, जो लगभग हमेशा प्रीमियम में रहता है। आप देखोगे कि निफ्टी का कैश शायद चल रहा है 17,000 पे और उसका फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो रहा है 1738 with a premium of almost 38 points. Say Nifty spot is at 17,000 and futures are trading at 16,990. So the futures trading is at a discount of ₹10. So this is true for all the stocks trading in the future markets and the indices, both Nifty and Bank Nifty. Mostly futures trades in premium. In various very rare cases, it trades in discount. There can be many reasons. Supply chain issue हो सकता है, कोई स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस हो गया और इंटरेस्ट रेट गिर गया। There could be lot of reasons. वो समझने के हम जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सच में हम आपको समझा भी नहीं सकेंगे उतनी बारीकी से। So what is called premium और contango और what is called discount और या backwardation, ये आपको समझ में आया जब स्पॉट का प्राइस फ्यूचर्स प्राइस से लेस होता है, मतलब फ्यूचर्स प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, उसको बोलता है प्रीमियम और कॉन्टेंगो। और जब स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स प्राइस से ज्यादा होता है तो उसको बोलता है डिस्काउंट और बैकवर्डेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट दिस प्रीमियम एंड डिस्काउंट concept, and we will also know in details about how to trade in index futures, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स जो ट्रेड होता है उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और what is the difference between index futures trading and stock futures trading, and we will also discuss about lot more in our next video. Hope this video was interesting and informative. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, उसमें कंजूसी मत करना क्योंकि we get a lot of motivation and inspiration, बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो पॉजिटिवली। Please subscribe and share the channel so that it can reach to maximum people and they can also know about the stock market and begin their journey without any fear. So दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख लीजिए कि हमारे जो फैमिली में हेल्थ इश्यूज है वो और इम्प्रूव हो जाए और आई होप आई विल ब्रिंग बैक द वीडियो द वेरी
next week, next Sunday, about the sections which I have talked earlier. So, friends, stay happy, stay well, happy trading, take care, stay safe. Goodbye for the moment. Thank you.